मैं PKH सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स। सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोग का अभिनंदन करता हूं, आप लोग यहां आए हमारे समक्ष, और मैं आप सब लोगों से खुद ही मिलना चाहता था, पर्सनली मिलना चाहता था, और इसीलिए मैं गुवाहाटी से आया। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कोविड के चलते कि हम रूबरू बात नहीं कर पाए, इसके लिए मुझे खेद है। कुछ लोग ज़रूर यहाँ मेरे ऑफिस में आए हैं, मैं बड़ा खुशी से उनका इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना स्टेटमेंट पढ़ दूँ, उसके बाद कुछ सवाल ले लूँगा। बेसिकली ये उसके लिए है, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ दूँ इसे, हिंदी अनुवाद आप लोगों को भेज दिया जाएगा। इज कैरिंग आउट इट्स मैंडेटेड टास्क विथ शेयर डेडिकेशन, डिवोशन, अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड अ सिंगल माइंडेड एजेंडा ऑफ कनेक्टिंग प्लेसेस एंड कलेक्टिंग पीपल. This philosophy has given the organization lots of accolades, laurels, and has won millions of hearts all across the country. This organization has never in the past nor in the future will indulge in trivial issues to gain any undesired mileage. Controversies are always detrimental to the growth of the organization and also the nation. The unfortunate incident of selection of site was totally inadvertent. The event was initially planned to be held at Huri in Kurunkume district, where we had recently launched a Bailey Bridge and connected the Huri location in Arunachal, but was shifted to the plains due to prevailing monsoon conditions. The inauguration site was chosen due to administrative reasons. As you know, taking helicopters in the far hinterlands is difficult during these monsoon seasons and unpredictable. So we chose a site. The chosen site also had a helipad and a covered shed to cater for any eventuality due to rains, as had been forecasted earlier also. I, during my visit on the 15th, unintentionally recommended that the two signboards, one at the helipad and one at the main entrance of ITBP, be made neutral to avoid any controversy arising on the day of the inauguration. Now let me make it clear here only that it was not basically a recommendation, though it is, I am saying it's a recommendation, but I just casually asked that whether this place is in Assam or it is in Arunachal, and there were a lot of officers around me because I was visiting that place and just shortly before the inauguration. So somebody said कि सर ये आधा आसाम है आधा अरुणाचल है, तो I just said कि please be sure about it and let no controversy crop up because of this. Probably in the heat of the moment somebody must have taken it very seriously, but there was no intentional any orders passed for that. The DGP Arunachal Pradesh on the 16th just showed me a photograph along with that, and he wrote a letter, a WhatsApp message to me saying that some people have defaced this and whether BRO was involved in that. I said it was a casual discussion which took place and somebody probably took it seriously and something must have happened. I'm not sure. Let me check, and if it has been done, I will immediately revert it. And the same thing happened. Immediately when I checked, I came to know that this thing has inadvertently, somebody has done this, taken my orders as orders, but they were just a question. And in that, I immediately told them to withdraw that, and it was, status quo was maintained immediately on the 16th itself. We did not intend to hurt the sentiments of our beloved brothers and sisters of Arunachal Pradesh in any way. Any action whatsoever happened, let me tell you, friends, it was completely unintended.
Further, it is also to be brought to the kind notice of Arunachal Pradesh, being the farthest state in the very close to our heart. The 1/6 of the total allotted budget of BRO is testimony of our love, our commitment and resolve to undertake the infrastructure development in the state at an unprecedented pace. Out of 7 projects, my 4 projects are in Arunachal Pradesh. So you can imagine what type of priority is given. I also sacrificed 300 Karmayogis of BRO in last 10 years. What more dedication and sincerity does the state expect from this organization when my 30 Jawans are giving life for infrastructure of this project? Can we ever think, can we at all think of going beyond our call of duty to do such trivial mistakes? It was totally unwarranted and unintended, my friends. Further, it is also to be brought to the kind attention that on 17th of June 21, out of 12 roads, 10 were dedicated to the people of Arunachal Pradesh, which shows BRO's commitment to the people of the state. In recent past, DGBR himself visited the state and personally monitored and reviewed the multifarious projects under progress in Arunachal Pradesh. It is a matter of pride for us that out of 18 projects in BRO, 4 are totally dedicated to the service of Arunachal Pradesh. Incidentally, the oldest project, Vartak, and the youngest Brahmang of BRO also belongs to this beautiful state. The unfortunate incident is nothing more than an inadvertent mistake, just happened in the pressure of organizing an event while racing against time. In no way BRO had even an iota of malevolent intention of hurting the sentiments of people of Arunachal Pradesh. It should be taken as an unconditional apology due to the emotive connect that BRO has with its people of this state. BRO with this statement again expresses its resolve and commitment to the development of the state and believes that we along with the people of the state move ahead hand in hand on the path of progress and prosperity. Jai Hind. If any questions are there, I would like to take few questions from you. Since 62, Ji. India failed because of no proper road to the border area. That is why BRO has been set up to develop roads to border area. How far BRO has been successful in developing roads, particularly in Arunachal area? I remember a small incident to you. Let me narrate a small incident to you. When I joined border roads in 1988, I have seen Arunachal Pradesh since then. And border road is working since last 1960. And we have been connecting the people in the most of the remotest of the places, whether it is in the Khonsa area, whether it is in the Teju area, whether it is Anini, Roing, or even in Pasighat area. I have gone to the last mile of each and every nook and corners, and I think we are at places bang on the borders now, and at places we are hardly 10 to 15 meters behind the borders. So as far as connectivity is concerned, I think we have done our bit and we will continue to do it from to times to come. Now our main focus stands to connect the borders and ensure that all the roads leading to the borders are all made double lane, so that all the villages along the road are also connected with fastest means of communication. Thank you.
भी बना ली, जी। फिर उसको इनोवेशन के लिए अलो कैसे कर दिया? नहीं, देखिए इसका दो हिस्सा है, 0 to 20 और 20 to 45। इस रोड का दो हिस्सा है। 0 to 20 100% कंप्लीट है। 20 to 45 का अभी अप्रूवल आया नहीं। जैसे ही वो अप्रूवल आएगा वो काम भी शुरू चालू हो जाएगा। तो लेकिन अभी तो 0 to 20 कंप्लीट हो गया था, इसलिए उसको कंप्लीट कर दिया। सर वो जो पूछ रहे वो 0 to 20 की बात कर रहा है, 2 किलोमीटर है किमिन से, 2 किलोमीटर में एक ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ। आपने विजिट किया कि नहीं? नहीं, मैं आप विजिट ऐसे बोल रहे हैं। नहीं विजिट किया, क्यों नहीं The किया? bridge has never been completed. You can go and see somebody. Send somebody, he will visit. कहाँ में कंप्लीट हुआ है? Who said it is completed? Existing bridge छोटा सा ब्रिज है, एक गाड़ी चलने का, दो गाड़ी तो चलता नहीं है। Who said it is नहीं, अच्छा, आप उस ब्रिज की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, देर आर 2 stages ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड। नंबर 1 stage is establish the connectivity, made widen the road, and the second part of it is existing जितने temporary bridges हैं, they have to be completed and converted to double lane bridges. Now these double lane bridges conversion come as a separate package. ये अलग जॉब में आते हैं। एज लॉन्ग एज दे आर 40 आर ब्रिजेस, 40 टन लोड का ब्रिज अगर एग्जिस्ट करता है, उसको 70 टन के लिए बनाना है या नहीं बनाना है, ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है। नहीं, एडीजी साहब, मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा था, आप शायद उस लाइन में नहीं जा रहे हैं। किमिन से चेक से 2 किलोमीटर का अंदर में 2 ब्रिजेस है। एक ब्रिज काफी अच्छा है, बड़ा ब्रिज है। जी। सबसे सामने वाला जो ब्रिज है एकदम छोटा सा ब्रिज है। हाँ जी। वो ब्रिज ऑलमोस्ट इट इज द वर्ज ऑफ कोलैप्स। नहीं, उसको देख लेंगे, अगर ऐसी बात है तो उसको देख लिया जाए। हम लोग को नहीं लगता है कि सर आप कैसे करके 20 किलोमीटर तो कंप्लीट तो हुआ नहीं, 18 किलोमीटर ही शायद आप लोग का हुआ है लगता है सुनने में। लोग ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, तो उसको बाकी उसको ब्रिज- देखिए क्या होता है जब सर, रोड शेर बनती में- है। शेर में ब्रिज एक है, वो बड़ा ब्रिज है, उसको आप रिनोवेशन करें। वहाँ पे ब्रिज में कुछ डिफिकल्टीज है, हम लोग जाके देख चुके हैं। और पामसकी में एक ब्रिज है, वो ब्रिज थोड़ा ठीक है। उससे पहले किमिन टाउन जो आपका मंदिर का सामने जो ब्रिज है, वो ब्रिज तो एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। नहीं, उसको देख लेंगे हम, अगर आप ऐसे बता रहे हैं तो उसको देखा सर जाएगा। सर ठीक है, वो आप देख जी। लीजिएगा। दूसरा सवाल है, आपने स्टेटमेंट पढ़ा है। जी। एज पर योर स्टेटमेंट यू आर नॉट अपोलोजाइजिंग, यू आर टेलिंग द पीपल आई अपोलोजाइज, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं पूरे अरुणाचल स्टेट से, अगर मेरे से गलती हुई या नहीं हुई, जो भी आप समझें, मैंने इंटेंशनली कभी कुछ नहीं कहा। और अगर आपसे लगता है, अगर थोड़ा भी अरुणाचल प्रदेश की जनता के दिमाग में अगर थोड़ा भी डाउट है, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझसे ये गलती अगर हुई भी है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, किसी तरह से नहीं था। सर अगर इंटेंशनली नहीं था तो अरुणाचल जहाँ सुवनश्री ब्रिज मतलब वो है, गेट है जी। वहीं पे गेगू अपंग सर जी की इनोग्रेशन वाले ये है स्टोन। हाँ स्टोन है, हाँ। तो उसे वाइट पेस्ट किया गया है, वो क्यों हुआ? नहीं, वही मैं आपको पहले ही बता दिया। मेरे मन में एक चीज़ आई थी, क्योंकि ये गूगल की इमेज वगैरह थोड़ा कंफ्यूज कर देती हैं, आजकल सबको कर देती हैं। गूगल इमेजरी अगर आप उस जगह की निकाल के देखें तो वो आधा असम में दिखाता है, आधा अरुणाचल में दिखा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था वहाँ पे, हम लोगों के दिमाग में भी था, मेरे दिमाग में भी कन्फ्यूजन आया। तो मैंने दिमाग में ऐसी लोगों से जनरली बात की, और उस बात में किसी ने उस चीज़ को सीरियसली लेके कुछ हरकत कर दी, तो कि दूर इमीडिएटली उसको ठीक करा। सर मैं आपको याद दिला देता हूँ जी। सर, गूगल चलता है, ठीक है, जी, जी। गूगल जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जब इंस्पेक्शन करने गए, वहाँ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी था शायद, आप नहीं थे। ओके, आपका ग्रिफ का, आपका बॉर्डर रोड का ऑफिसर्स तो जरूर था हाँ, बिल्कुल थे। आपके साथ में। बहुत क्या ऑफिसर ने भी आपको वो लोग भी थे, आईटीबीपी आईटीबीपी के भी लोग थे, वो लोग भी थे, सभी लोग थे। हम ये सर जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या वो ऑफिसर ने भी आपको ऐसा बताया कि आधा अरुणाचल आधा जी असम? जी जी तो जी। सर आपको ये अब नहीं लेकिन लगा कि एक चेक गेट है, अब वहाँ पर छतरी खड़ा रहता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा काम इंटरनेशनल बॉर्डर देखना है। मैं स्टेट के बॉर्डर की जुरिडिक्शन में जाता ही नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं, और ना मेरा ये काम है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ की चिंता भी नहीं थी कि ये असम है या अरुणाचल है, क्या फ़र्क पड़ता है, देश तो मेरा है, मुझे देश को देखना है। मैं स्टेट की बाउंड्री, भाई साहब मैं आपको बता दूं, रामचंद्र जी ने जब सीता जी को छोड़ के गए तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, लेकिन वो भी सीता को नहीं बचा पाई। मेरी दुविधा आज के समय में सीता वाली, और कोई नहीं। सर आप जान के भी अनजान के भी जी नहीं, ऐसा- जी नहीं। मैं वो अनइंटेंशनली भी होता होगा,
तो कोई जो आदमी वो करवाया, क्या आपने ढूंढ के निकाल लिया कौन आदमी मेरा बात सुनने का वादे किया? देखिए ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें इतनी भीड़ भाड़ में कौन क्या कब कर जाता है किसी को पता नहीं चलता, और न अब वो कभी बताएगा कि किसने किया, ये भी मैं आपको बता दूं। सर आप लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे क्या सीसीटीवी की सुविधा नहीं है? जी नहीं थी, वहाँ नहीं थी, आईटीबीपी था लेकिन सीसीटीवी नहीं थी वहाँ, नहीं थी। सर बहुत हाई सिक्योरिटी जोन होता है जहाँ इमिग्रेशन होता है, जो जगह इमिग्रेशन हुआ काफी सिक्योरिटी जोन था, एसपीजी एनएससी यहाँ के जो वीआईपी सिक्योरिटी बोलते हैं वो सारा सिक्योरिटी वहाँ बंदोबस्त था। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ कैसे? देखिए ये it was not there on the day of inauguration. उससे पहले जो कुछ भी हुआ उसको करेक्ट कर दिया गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग लिया कि वो हुई गलती, मना थोड़ी कर रहे हैं हम कि गलती नहीं हुई, लेकिन हाँ किसी ने की है, गलती इनवर्टेंटली हुई है, लेकिन उसके पीछे अगर कोई बोले कि बीआरओ का कोई इंटेंशनल या अनइंटेंशनल क्या हो सकता है बताइए। देखिए अगर कोई आदमी कोई कार्य करता है तो उसमें उसका कोई फायदा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। मेरा इससे क्या फायदा और क्या नुकसान साहब? मैं तो रोड बनाने वाला इंजीनियर हूँ, मेरे लोग भी, मेरे लड़के भी, उनको क्या मिल जाता? Sir, can I ask for information? जी This is Amar Sarkar from Arunachal Times. जी बता। Sir, I think when we came to when this white trees property Arunachal news started increasing. So I just want to know, since you are saying that whatever episode had happened it was unintended and advertent. So my question is, why did BRO officials mention that it was done because of starting decrease, and that's the people of Arunachal want to know. Well, unfortunately, the chief engineer is not here, and he has gone to brief the army commander. So I'll not be able to really, exactly say as to why did he say that. But I don't think there was such a reason, and it was maybe that he might have been in a hurry or something, and he just must have said in the heat of the moment to escape himself or something, just said it. But I don't think it was that. It was inadvertently, and So, sir, you were saying, sir, you were saying there was no any direction from center and no. It was not. Definitely it was not. Nobody can say Sir, that. my second question is, since you are saying that especially that particular place, when you go to Google, map, जी. it's showing some part is in Assam, some part is in Arunachal. Of course, it may happen, but my question is, your BRTS office is there. Didn't you consult with your ground staff to, ascertain which person falls under Arunachal, which person Look, falls under Assam? Why did you? Mr. Amar, I'll again say the same thing. As far as BRO is concerned, we are looking at the international border. We don't look at the state borders, because this is not our concern. We have been making interstate roads. Look, let me tell you one more thing. I was NEC advisor for 5 years, from 2012 to 2017. And I was the one who started the NERSDS scheme. And it was not named as NERSDS. It was at that time known as orphan roads. It was those roads which connected the two states, but were not looked after by any state. So I was that person who constructed those roads. Do you think I will ever try to dislodge these things? States are not. We have loads of love and affection with the BRO working in Arunachal Pradesh in the interest of public service, guarding the international, taking routes to help the army jawans and local people of Arunachal Pradesh. But the concern the people of Arunachal Pradesh is raising after the incident is that कि क्या कीमिट असम में है ना अरुणाचल में? नहीं, ये देखिए, ये जो चीज़ आपने कही, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि हमने असम के सीएम साहब को बुलाया था और अरुणाचल के भी सीएम साहब को बुलाया था,
और ये मैं आज के न्यूज़पेपर में मेरे ख्याल से अरुणाचल टाइम्स में आया है, जिसमें कि पूरी हिस्ट्री दी गई कि सन 1951 से ये कुछ केस चल रहा है बाउंड्री डिस्प्यूट का। तो ये पहली बार मैंने पढ़ा इसमें, एंड थैंक्स टू अरुणाचल टाइम्स दैट हु रोट दैट थिंग वेरी वेरी क्लियरली कि आज ये सबजुडिस केस है एंड ऑल दोज थिंग्स। एक्चुअली टेल यू वी वर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, अदरवाइज हम ये काम करते नहीं। हम अंदर आके कर लेते, ईटानगर में कर लेते, लेकिन वो कुछ भी हो सकता था उस समय। तो वो एक रोड की हमारी शुरुआत की पॉइंट थी। लोगों ने सोचा कि रोड में मंत्री जी जाएंगे, देखेंगे, उन्हें खुशी होगी, अच्छा लगेगा, जगह भी अच्छी थी, कवर्ड एरिया था, सेलेक्ट कर लिया और हो गया। और उसी में ये पता नहीं कहाँ से एक सांप मेरे गले में किसी ने डाल दिया। अब उस सांप को छुड़ाने के मैं पीछे प्रयत्न कर रहा हूँ। सर वहाँ दोईमुख कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है कि नहीं दिया है? जी, वहाँ का एमएलए को बैठने नहीं दिया गया, आपने उनको इनवाइट करके बेइज्जती करने का कोशिश क्यों किया? नहीं, कहाँ ऐसा तो नहीं हुआ। ताना हाली तारा एमएलए है दोईमुख कंस्टिट्यूएंसी का, उन्होंने मीडिया में आके बोला है कि हमको बैठने तक को कुर्सी नहीं दिया आप लोगों ने, तो ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हमने भी देखा है, ऐसे हुआ है। जो एमएलए क्या आप एमएलए साहब से माफी मांगेंगे क्या? जी, अगर मेरे संज्ञान में लाया जाएगा तो मैं ज़रूर मांगूंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई हिचक नहीं है। देखिए, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उपदेश। मैं तो उस फिलॉसफी पे चलता हूँ। हम लोग तो पब्लिक के सर्वेंट हैं। अगर वो तो हमारे माई बाप हैं, नेता लोग तो हमारे माई बाप, हम उनसे नहीं बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? मुझे याद है वो मेरे साथ शायद खाने के टेबल पे बैठे थे, वो मेरे साथ खाने के टेबल पे बैठे थे, मेरी अच्छी बातचीत हुई उनके साथ, उसकी शायद कोई फोटोग्राफ्स भी होंगी, हम लोगों के साथ बैठे थे वो खाने पे। दूसरा सवाल है सर, बीआरओ का एजेंट्स में काफ़ी एफआईआर दर्ज हुआ है, पूरा किमिन से ईटानगर से लेके काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह में काफ़ी प्रोटेस्ट है आपके एजेंट्स में जी, और एनआईए का डिमांड हो रहा है, सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड हो रहा है, और इंडियन स्टेट पुलिस में भी एफआईआर दर्ज हुआ है आपके खिलाफ में। जी। आपका संगठन के नाम है, आपको पता नहीं था हुए ऑर्डर, लेकिन आज पता चला कि आपने बोला था, तो अभी आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि किसी स्टेट में कोई आदमी जाता है और कहीं जाके कोई ऐसी चीज़ें पूछ लिया कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बोर्ड में क्या लिखा है, क्या ये सही लिखा है, तो कल रक्षा मंत्री जी आएंगे, उनके साथ लोग आएंगे, अगर उन्होंने कोई पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? अब उसके बिना पे कोई आदमी अपनी तरफ से होके उसको काला सफ़ेद कर दे, तब उसके लिए तो हम तो जिम्मेदार नहीं हो सकते ना। हमने तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा था। अब उस क्वेश्चन के पूछने से अगर कोई रिएक्ट कर गया, अब उसके बाद हमने उसको जैसे रिएक्शन हमको मिला हमने उसको करेक्ट भी कर दिया, और उसके बाद जो उस 24 घंटे में जो हुआ उसके लिए क्षमा भी मांग लिया आप लोगों के सामने आके। अब उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश को क्या चाहिए, जब मैं 30 लोगों की बलिदान हर साल दे रहा हूँ इस स्टेट के लिए, उससे बड़ा आप लोगों को मेरे से क्या और कौन सा बलिदान चाहिए, बताइए। Sir, I have a this Kimin road. Do you know except that Kimin, specific in the Kimin area, it was under Arunachal? Yes. And the second I want to ask is, who was the person from BRO who took your casual talk so seriously and How? changed the name from Arunachal Pradesh to Assam? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समझ में नहीं आता है कि किसने कर दिया, कब कर दिया, क्योंकि वो तो बाद में लोगों ने देखा, जब होने के बाद। अब उसको ढूंढना और पकड़ना, ये सब कोई बेचारा छोटा सा आदमी होगा, उसने सुन लिया, कर लिया, अब उसको बाद में करेक्ट कर दिया गया, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं किया गया। यही मैं बार बार कहूँगा कि मेन चीज़ होती है भावनाएं। लकीरें राज्यों को नहीं बनाती, लोग राज्यों को बनाते, जनता राज्य को बनाती है। सर वो सही है, लेकिन यहाँ में अब जैसे अभी मेरे देखिए अरुणाचल असम का बाउंड्री बहुत सालों से चल रही है। जी, ये तो मुझे आज ही पता चला। तो ये आपका छोटा सा बात भी हम लोग अरुणाचल के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ। जो सवाल था सर आपसे, आपका जस्ट आपका मुंह से सुनना था कि हाउ डू यू एक्सेप्ट कि जमीन जो अरुणाचल में पार्ट है ये आपके असम का? देखिए, किमिन जो है वो असम, वो आज भी गूगल दिखाता है।
लेकिन कौन सा किसका पार्ट है ये डिसाइड करने वाला मैं कोई होता ही नहीं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, ये तो कोर्ट में सब जुडिस है ये मामला। मैं उसके लिए कैसे बोल सकता हूं कि ये किस में है? और मेरे बोलने से भी, मेरे कुछ भी बोलने से क्या उसका अर्थ बदल जाएगा? क्या उसकी स्टेट बदल जाएगी? ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसके लिए अधिकारी हूं। जी साहब, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जिस जगह पर इनोवेशन हुआ था वो आईटीबीपी का जमीन था जी। 275 एकर्स जमीन जो है जी अरुणाचल का पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉटमेंट दिया है जी। उसका पावर का जो बिल होता है अरुणाचल सरकार को दिया जाता है जी। और रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू जो होता है अरुणाचल सरकार को देते हैं जी। तो आप किस बिना पर अभी भी सोच रहे हैं देखिए, कि अरुणाचल में ना नहीं 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 नहीं, देखिए फिर वही बात, ये चीज सब जुडिस है, इसके लिए मेरा बोलना सही आपको तो आज पता चला ना। नहीं। नहीं देखिए, आज आपने बताया मेरे को ये चीज़, ये तो आप आज मैंने पढ़ के सुना, लेकिन मैं ये फिर बोलूँगा कि मेरा बोलना इस चीज़ पर उचित नहीं है। मैं उस चीज़ के लिए कहने आया हूँ कि उस जगह पे जो चीज़ हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता।